Hello class, this is Swadhisth Rao, your English teacher. I hope you all are doing well at your home. So today I am going to start the second part of our chapter, The Sound of Music, and the name of our second part is the Sehnai of Bismillah Khan. I think you must have heard about the name of Bismillah Khan because he was the most famous Sehnai player in the Indian culture. Okay, in this whole story we will discuss about the childhood, the growing up, the performances, awards and the achievements of Bismillah Khan. But before starting the discussion of Bismillah Khan, I would like to give you some details about the Sehnai, that from where it had come and who invented Sehnai. Okay, so let's go on the line by line explanation of this chapter. Let's go. So this is the second part of our chapter, the Sehnai of Bismillah Khan. Okay, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noise makers. Few had thought that it would one day be revived. ओके तो औरंगजेब नाम के एक एम्परर हुआ करते थे. उन्होंने पुंगी जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होती है, उन्हें उनकी आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्हें उसकी आवाज़ बहुत अनोइंग लगती थी. इसलिए उन्होंने अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे शासन में लोगों को मना कर दिया कि कोई भी पुंगी प्ले नहीं करेगा. ओके, a barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. ओके, एक वहाँ पे बहुत उस जगह पे एक बहुत बड़ी म्यूजिशियंस की फैमिली थी, उसमें एक बार्बर हुआ करता था. उसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को चेंज करके एक नया इंस्ट्रूमेंट, नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेगा. तो वो क्या करता है, पुंगी से ज़्यादा लंबी और चौड़ी एक पाइप को लेता है और उसमें 7 होल्स करता है. ठीक है, और उस 7 होल्स को जब वो प्ले करता है कि कभी किसी होल को बंद करता है, कभी किसी होल को ओपन करता है, तो उससे बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड निकलती है. मीन्स पुंगी की अपेक्षा उससे बहुत ही अच्छी साउंड आती है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. तो जो बार्बर रहते हैं वो पूरी रॉयल्टी के सामने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं और सब लोग उससे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Saz chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named as the Sehnai. Okay, तो सब वो लोग ये डिसाइड करते हैं, चूँकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से देखने में और टोनल क्वालिटी दोनों में बहुत डिफरेंट था. तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट को हमें एक नया नेम देना चाहिए. तो इसका नेम कैसे रखाता है कि चूँकि ये पहली बार शाही रॉयल्टी में बजाया गया था, मीन्स शाही चैम्बर में बजाया गया था, और किसके थ्रू बजाया गया था, नाई के थ्रू, मीन्स एक बार्बर के थ्रू बजाया गया था, इसलिए उसका नेम क्या पड़ जाता है, सहनाई. Okay, the sound of the Sehnai began to be considered as auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. तो जो सहनाई की आवाज़ थी उसे बहुत शुभ माना जाने लगा. ठीक है, और इसी वजह से उसे मंदिरों में बजाया जाने लगा. और यहाँ तक कि जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती थी उसका एक उसे इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है एक इसेंशियल पार्ट. ठीक है, तो उसे उसका एक इसेंशियल पार्ट माना जाने लगा, मीन्स उसका एक आवश्यक पार्ट, जिसके अपरिहार्य, मतलब जिसके बिना वो काम पूरा नहीं हो सकता है, वैसा पार्ट माना जाने लगा सहनाई को. In the past, the Sehnai was the part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. In Naubat means होता है ना वो 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि रॉयल्टी में बजाए जा सकते हैं. ठीक है, तो उन्हीं में से सहनाई भी एक उसमें भी शामिल हो गया. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. जो कि अभी तक ये जो सहनाई थी वो सिर्फ मंदिरों और शादियों में बजाई जाती थी, लेकिन सहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लाने का श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Damrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari's temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg of prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago,
and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. ओके तो बिस्मिल्लाह खान की स्टोरी यहाँ से बिगिन होती है कि जब वो 5 इयर्स के थे तो वो डमराव उनका जो गांव था, वहाँ पे बिहार में उनका जो गांव था डमराव, वहाँ पे तालाब किनारे गिल्ली डंडा खेलने वो जाया करते थे डेली। एंड वहाँ पे एक बिहारी जी का टेम्पल था जहाँ पे वो भोजपुरी सॉन्ग गाया करते थे। और उसके अंत में मीन्स उसका रिवॉर्ड उन्हें क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू जो कि लगभग 1.5 किलो का होता था। और वो किसके थ्रू दिया जाता था, एक लोकल महाराजा वहाँ के हुआ करते थे, उनके थ्रू वो रिवॉर्ड के रूप में उन्हें दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये बात 80 साल पहले की है लगभग। और उस टाइम से वो जो छोटे से बच्चे, जो 5 साल का बच्चा जिसे एक लड्डू अवार्ड में दिया जाता था, उसने नेम और फेम अर्न करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया और लास्ट में जाके उसे इंडिया का मोस्ट फेमस नेशनल अवार्ड मिलता है, क्या, भारत रत्न। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from बिहार। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 21 मार्च 1916 में हुआ था, बिहार के एक वेल नोन म्यूजिशियंस के घर पे। ठीक है, मीन्स उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनके फादर, अंकल, ग्रैंडफादर और मैटरनल अंकल जो भी थे, वो सब क्या थे, बहुत फेमस म्यूजिशियंस थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे, सहनाई के नवाब माने जाते थे। ठीक है, हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स। और उनके फादर जो थे, क्या नाम था उनका, पैगंबर बख्श, और जो उनके अदर अंकल्स थे वो सब क्या थे, वो सब भी एक बहुत ग्रेट सहनाई प्लेयर्स हुआ करते थे। So, the young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banras where Baksh was employed to play the Sehnai. So ये बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह का बचपन से ही उनका म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। और लगभग जब वो 3 साल के थे तो उनकी मदर उन्हें उनके मैटरनल अंकल मीन्स उनके मामा क्या लेके गई थी, बनारस। वहाँ पे वो अपने अंकल अली बख्श को सहनाई बजाते हुए देखते थे और बहुत खुश होते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था सहनाई बजाते हुए देखना और उसे सुनना। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान भी अपने अंकल का साथ देने लगे और वो उनके साथ सहनाई प्ले करने लगे। और वो उन्हें इतना अच्छा लगता था कि वो घंटों घंटों बैठ के अपने अंकल को सहनाई प्ले करते हुए देखते रहते थे। और फिर धीरे धीरे बिस्मिल्लाह ने भी सहनाई की और अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और वो लगभग पूरे दिन बनारस के गंगा घाट पे बालाजी मंदिर में और मंगला मैया के मंदिर में बैठ के वो पूरे दिन अकेले वहाँ बैठ के वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करते रहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था वो तीनों जगह पे बैठ के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस करना। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज। वो कहते थे कि जो गंगा की जो लहरें होती हैं वो उन्हें बहुत इंस्पायर करती हैं न्यू म्यूज़िकल टोन्स और न्यू म्यूज़िकल रागाज को फाइंड करने में। मीन्स वो गंगा की लहरों को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और उससे वो नए म्यूज़िक को क्रिएट कर पाते हैं। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. ये बताया जाता है कि जब लगभग बिस्मिल्लाह खान 14 साल के थे तो वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे। और जहाँ पे ये बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने अंकल के साथ परफॉर्म किया था। और वहाँ पे एक बहुत बड़े उस्ताद आते हैं, उस्ताद फयाज़ खान। तो वो उस परफॉर्मेंस के लास्ट में वो बिस्मिल्लाह खान को कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें वो एप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। ओके, with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. और ये बताया जाता है फिर कि 1938 में बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा चांस मिला। क्या मिला चांस उन्हें, कि लखनऊ में जो एक ऑल इंडिया रेडियो था वहाँ पे उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिला। और बहुत जल्दी वो
रेडियो पे बहुत फेमस हो गए, एक मोस्ट फेमस शहनाई प्लेयर के रूप में वो फेमस हो गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. Okay, तो ये बताया जाता है कि इंडिपेंडेंस के समय 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस के समय बिस्मिल्लाह खान ही थे जिन्होंने इंडिया का वेलकम किया था। एंड उस टाइम जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स भी उन्हें उस टाइम परफॉर्म करते हुए देखे थे। और फिर बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स। ये बताया जाता है कि बिस्मिल्लाह खान सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं थे, वो अब्रॉड में भी बहुत फेमस थे और वो अब्रॉड में भी परफॉर्मेंसेस देते रहते थे। उनकी फ़र्स्ट अब्रॉड ट्रिप जो थी, उनकी फ़र्स्ट अब्रॉड ट्रिप कहाँ की थी? अफ़गानिस्तान की थी। और वो वहाँ पे उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि वहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें वहाँ का प्राइसलेस बहुत प्रीसियस गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? पर्सियन कारपेट्स देते हैं उन्हें। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई। सिर्फ ये बताया जाता है कि सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही नहीं उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे जो बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते थे। एक फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे विजय भट्ट, वो उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक मूवी बनाई थी जिसका नेम उन्होंने गूंज उठी सहनाई रखी थी। उसमें भी उन्होंने बिस्मिल्लाह खान का एक सॉन्ग प्ले करवाया था। So the film was a hit and one of the Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chartbuster। So ये बताया जाता है कि वो जो मूवी थी दिल का गूंज उठी सहनाई वो क्या थी? बहुत फेमस हो गई थी और उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया वो वर्ल्ड वाइड मीन्स नेशन वाइड फेमस हुआ था। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and the second one is Vikram Srinivasa's Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो ये कहा जाता है कि इतने ज़्यादा फेमस होने के बावजूद बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही मूवी में अपने सॉन्ग्स दिए। फर्स्ट तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और दूसरी क्या थी? विक्रम श्रीनिवास की कोई कनाडा वेंचर था मीन्स उसका जिसका नेम था सनाधि अपन्ना। उसमें इन्हीं दोनों मूवी में उन्होंने अपने सॉन्ग्स दिए। वो कहते थे कि फिल्म वर्ल्ड का जो ग्लैमर होता है और जो दिखावा होता है, आर्टिफिशियलिटी होती है, वो उन्हें सूट नहीं करती। मीन्स उन्हें वो सब पसंद नहीं था कि फिल्म वर्ल्ड में जो दिखावा होता है, ग्लैमर होता है, आर्टिफिशियलिटी जो होती है, वहाँ पे जो शो ऑफ होता है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Awards and recognitions came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की अवार्ड्स और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बताया जाता है कि वो कितने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था। और कहाँ कहाँ उन्होंने परफॉर्म किया? तो उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में परफॉर्म किया, कैनेज आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी परफॉर्म किया। और वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान।
Okay, national awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. यहाँ तक कि उन्हें बहुत सारे इंडियन नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सारे अवार्ड उन्हें मिले. और इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न. और यहाँ तक कि 2001 में इंडिया का मोस्ट फेमस नेशनल अवार्ड जो होता है भारत रत्न, वो भी उन्हें दिया गया. विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. और वहाँ पे जब उन्हें भारत रत्न मिल रहा था तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक के लिए इंस्पायर कीजिए, उन्हें म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी हेरिटेज है जिसे यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी आके सीखने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ये एक म्यूज़िक एक ऐसा कल्चरल हेरिटेज है जिसे अब्रॉड के लोग भी आके जिसकी डिमांड करते हैं. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Bandras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. वो जहाँ भी परफॉर्म करते थे बिस्मिल्लाह खान, कहीं भी इंटरनेशनली भी परफॉर्म करते थे, वो अपने लाइफ में दो इंडियन प्लेसेस को कभी नहीं भूलते थे और दो इंडियन प्लेसेस का हमेशा वो जिक्र किया करते थे. फर्स्ट बनारस और दूसरा अपने बिहार के गांव डमराव का वो हमेशा जिक्र किया करते थे और कहते थे कि मैं इन दोनों प्लेसेस को कभी भूल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ में सबसे खूबसूरत प्लेसेस रह चुके हैं. A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA. उनका एक स्टूडेंट था उनका एक स्टूडेंट था जो चाहता था कि वो USA के सहनाई स्कूल में एक बार आए और वो उनसे कहता था कि द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनराज बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स दे. और वो स्टूडेंट उनसे क्या कहता था कि वो उस यूएसए के उस स्कूल में वहाँ पे बनारस का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा, आप बस एक बार आके वहाँ पे विज़िट कर लीजिए. ओके, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. तो वो खान साहब मीन्स बिस्मिल्लाह खान उस बच्चे से क्या पूछते हैं कि तुम सब कुछ तो सारे एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट कर दोगे, तुम वहाँ पे टेम्पल बना सकते हो, लेकिन क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ पे बहा सकते हो? मीन्स क्या तुम वहाँ पे गंगा रिवर को भी ले जा सकते हो? ओके, लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banras and the holy Ganga, and while in Banras I miss the unique matha of Damrao. वो कहते थे कि मैं कहीं भी परफॉर्म करता था मैं उन दो प्लेसेस को कभी नहीं भूलता था. कहाँ किस को? एक तो बनारस के गंगा घाट को और दूसरा अपने गांव बिहार के गांव डमराव को. वो कहते हैं यहाँ तक कि अगर मैं मुंबई में भी परफॉर्म करता था तो मैं अपने डमराव के मठ को कभी नहीं भूलता. Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. So Ustad Bismillah Khan को rich and cultural heritage of India का perfect example माना गया है, चूँकि वो एक मुस्लिम होने के बावजूद एवरी मॉर्निंग हर रोज़ सुबह वो काशी विश्वनाथ टेम्पल पे बहुत शिद्दत और बहुत पवित्रता के साथ वहाँ पे सहनाई प्ले करते थे. ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस. तो ये बताया जाता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को उनकी डेथ हुई थी और उस टाइम वो लगभग 90 से भी ज़्यादा के थे. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो ये कहा जाता है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन उन्हें वन डे का नेशनल कॉन्डोलेंस डे भी उनके लिए रखा गया था. So class, that's all from my side, and as you know that it was a long descriptive chapter, so I tried to give you the explanation in a summarizing way, and if still you have any doubt you can ask me. Okay, so thank you. Stay at home, stay safe, wear mask, use sanitizer, keep 6 feet distancing when you go outside of the house, and take care. Thank you.